Good morning students. Welcome to Shiv Jyoti Educational Group Kota. This is Barkha Gaur, your biology teacher. How are you students? I hope you all are fine and studying well. So students, today in this video session we are going to revise chapter 15, our environment of science subject, that is of class 10th. So students, as you have already learned this chapter, but today we are going to revise it. So I would like to suggest you, and it would be of course compulsory, please open your NCERT book and let us revise the main points, that means the points which we should remember when we are revising this chapter. So students, let us start with the open page number 256. ओके, वी आर कंसिडरिंग द न्यू एडिशन ऑफ द बुक. ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा अगर आपके पास पुराना एडिशन है बुक का तो द पेज नंबर में बी डिफरेंट, तो आप टॉपिक वाइज रेफर कर लीजिएगा. अदरवाइज न्यू एडिशन ऑफ बुक में आपका पेज नंबर 256 है एंड चैप्टर 15 आर एनवायरनमेंट. सो लेट अस रिवाइज वन बाय वन ऑल द पॉइंट्स. सो स्टूडेंट्स, द चैप्टर नेम क्या है आपके चैप्टर का? आर एनवायरनमेंट. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है? हमारे आसपास की सारी चीज़ें एनवायरनमेंट बनाती है. तो हमारा एनवायरनमेंट जो है उसको प्रॉपर रखना, उसको पॉल्यूशन फ्री रखना, एंड ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. तो एज वी आर गोइंग टू रिवाइज, लेट अस सी फर्स्ट पॉइंट दैट इन आवर एनवायरनमेंट देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस. कई तरह के सब्सटेंसेस हैं, लिविंग है, नॉन लिविंग है, एंड द मेन थिंग द वेस्ट विच इज प्रोड्यूस्ड इन द एनवायरनमेंट पॉल्यूट्स इट. तो वेस्ट जो है उसका डिस्पोजल, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट, ये सब भी बहुत ज़रूरी है. तो वेस्ट विच वी जनरेट आर ऑफ टू टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो वी कैन से दैट द सब्सटेंस विच आर ब्रोकन डाउन इजीली बाय बैक्टीरिया और फंगी, और दैट इज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. एंड इफ द सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बायोलॉजिकली, then they will be called as non biodegradable substances. Examples आप बता ही सकते हैं. Biodegradable like vegetable peels, animal waste, all these things are biodegradable. And non biodegradable में plastic, metals, these are non biodegradable substances. Now we talk about the ecosystem. तो ecosystem क्या है? Ecosystem comprises mainly लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों को मिलाकर हमारा इकोसिस्टम बना हुआ है. तो इकोसिस्टम इज अ नेचुरल और मैन मेड एनवायरनमेंट इन विच वेरियस फिजिकल फैक्टर्स सच एज वाटर, एयर, सॉइल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब ये सब मिलकर वर्क करते हैं तो क्या बनता है? इकोसिस्टम बनता है. यू कैन रेफर पेज नंबर 256 फॉर दिस टॉपिक. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जैसे कि मैंने बताया इकोसिस्टम में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों आ जाएंगे. तो लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम इज कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट. देन इकोसिस्टम कैन बी man made also and natural also. So let us discuss about it. Man made ecosystem is also known as artificial ecosystem and it contains, जो हम बनाते हैं, जैसे कि गार्डन हम प्रिपेयर करते हैं, क्रॉप फील्ड्स and aquarium, all these are man made या artificial ecosystem. and natural ecosystem में जो पहले से अपने आप बन गए, forest हैं, ponds हैं, lakes हैं. so you should remember these things. now we will classify the organisms into different categories and these categories are producers, consumers and decomposers. तो हमने जैसे कि बात की ecosystem में biotic और abiotic दोनों हैं. तो now we'll talk about biotic components, that is organisms. Now we'll talk about producers. Producers क्या हैं? The organisms which are producing food for others. The producers are the green plants which in the presence of sunlight can prepare their own food by the process of photosynthesis with the help of carbon dioxide and water. तो ये हुए producers. The producers are autotroph in nature. They can produce their own food. Then comes the category of consumers. Consumers will consume. अब consumers भी बहुत different categories में present होते हैं. First consumer, then second, like that. तो consumers are the organisms which consume the food either directly from the producers, या तो directly producers से लेंगे वो food, या फिर indirectly by feeding on other consumers. तो अभी हम food chain समझेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा. Then the third category of
organisms are decomposers, that is the microorganisms comprising bacteria and fungi mainly, which break down the dead and decaying organic matter. तो decomposers का भी बहुत important role है. ये क्या करते हैं, organisms जो dead organisms हैं उनको decompose करते हैं और environment को clean करने में help करते हैं. तो these are the third category of organisms. Now the next topic, you can come on page number 258, that is food chain and food web. तो यहाँ पे आप देखिए दो चीज़ें हैं. जब भी हम organisms की बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा environment में there is a chain of organisms कि कौन सा organism किसको food बनाता है. तो this is a sequence of organisms that one eats the other. So we can see that feeding relationship between living organisms makes the food chain. So पहले हम food chain ही देख लेते हैं. For example यहाँ पे sunlight is trapped by plants. Green plants ने sunlight से energy ले ली, food बनाया. Then a grasshopper is there sitting on the leaf which is taking food from the leaf. Then the frog is there, frog is eating grasshopper. Then frog is eaten by snake and snake is eaten by vulture or the larger bird. तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है फूड चेन का कि वन ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय द अदर या सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड वन ईट्स द अदर. तो दिस इज द फूड चेन. ऐसे ही आप एनवायरनमेंट में देखेंगे तो बहुत सारी फूड चेन मिलकर एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करती हैं. बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ग्रास हॉपर को सिर्फ फ्रॉग ही खाता हो, ग्रास हॉपर को कोई बर्ड भी खा सकती है. तो इस तरीके से क्या है, The food chain is interlinked with each other. तो जब बहुत सारी food chains एक दूसरे से interconnect होती हैं तो वो बनाती हैं food web. So the series or organisms taking part at various biotic levels forms a food chain and each step or level of the food chain forms a trophic level. तो अभी हम देखते हैं trophic level क्या होता है. जिस तरह से देखिए कि food chain का example है, आपकी बुक में एक activity दी हुई है पेज नंबर 257 पे एक्टिविटी 15.2. तो आप उसको रेफर कर सकते हो और उसके आंसर्स आपको इस फिगर से मिलेंगे. तो दिस इज वन ऑफ द टेरेस्ट्रियल फूड चेन और यहाँ पे ये दिखाइए एक एक्वेटिक फूड चेन. तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन फॉर एग्जांपल प्लांट्स, प्लांट इज ईटन बाय ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर इज ईटन बाय माउस, माउस इज ईटन बाय स्नेक एंड स्नेक इज ईटन बाय हॉक. तो ये तो हुई टेरेस्ट्रियल फूड चेन. अब यहाँ पे देखिए प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, ग्रासहॉपर इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, mouse is a secondary consumer, snake is tertiary consumer and hawk is quaternary consumer. तो ये इस तरह से ट्रॉफिक लेवल्स हैं. ये देखिए ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. मैक्सिमम 5 ट्रॉफिक लेवल्स ही होते हैं किसी भी फूड चेन में. ऐसा क्यों होता है ये भी अभी आपको बताएंगे. अब ये देखिए एक्वेटिक फूड चेन का एग्जाम्पल है कि सबसे पहले जो वाटर में फाइटोप्लैंक्टॉन्स, बहुत स्मॉल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, they are eaten by zooplanktons. ये small creatures हैं which feed on phytoplanktons. zooplanktons को ये थोड़ी छोटी छोटी fishes हैं, ये consume करेंगी. small fishes को थोड़ी सी और bigger fishes like tuna will consume them. then tuna will be consumed by whale. तो this is the food chain found in aquatic environment. तो these are the different food chains and trophic levels. इससे भी आप समझ सकते हैं इस फ्लो चार्ट से. देखिए ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रॉफ्स कैप्चर एनर्जी. सबसे पहले क्या होगा, एनर्जी इज कैप्चर्ड फ्रॉम द सनलाइट बाय द ग्रीन प्लांट्स एंड दैट लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी जो कि फोटोसिंथेसिस में होता है. देन द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स विल बी कंज्यूम्ड बाय प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कि हर्बीवोर्स में होता है. हर्बीवोर्स मीन्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो हैं वो ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे. तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए. अब इन कंज्यूमर्स को, प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो कंज्यूम करेंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि प्राइमरी कार्निवोर्स. ये किसको ईट करेंगे, दे विल ईट हर्बीवोर्स. देन दीज प्राइमरी कार्निवोर्स कैन बी कंज्यूम्ड बाय अदर एनिमल्स विच विल बी कॉल्ड एज टर्शरी कंज्यूमर्स या सेकेंडरी कार्निवोर्स विच प्रे अपॉन हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स. देन एक और लेवल हम देख सकते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, या हम इसको टर्शरी कार्निवोर्स कह सकते हैं. दे फीड ऑन टर्शरी कंज्यूमर्स. तो इस तरह से ये पूरी एक फूड चेन का फॉर्मेशन होता है. ये इस तरह का ग्राफ या इसको पिरामिड कह सकते हैं हम. देखिए नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी डिक्रीज होते जाते हैं एज वी गो
up in the trophic level. जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, एक तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो गेट डिक्रीजेस एंड जो एनर्जी है, एनर्जी इज ऑल्सो डिक्रीज्ड. जैसे जैसे हम प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर की तरफ मूव करते हैं तो एनर्जी भी डिक्रीज होगी और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी डिक्रीज होते हैं. तो ऑटोट्रॉफ्स आर द मैक्सिमम, उससे कम हर्बीवोर्स हैं, उससे कम कार्निवोर्स हैं और उससे कम टॉप कार्निवोर्स हैं. अब देखिए एनर्जी कम होती जाती है, इसका मतलब ये कि जो टॉप पे है उसमें सबसे कम एनर्जी होगी. अगर और ट्रॉफिक लेवल्स होते इसके बाद तो जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता उसके लिए एनर्जी बहुत कम बचती. ठीक है, तो इसलिए भी ओनली 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स आर फाउंड इन द फूड चेन. अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है, आप पेज नंबर 259 पर एंड 258 पर देखेंगे, 258 एंड 259 पर. तो 10% लॉ, व्हाट इज दिस 10% लॉ? इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि जब लाइट एनर्जी प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं तो टोटल लाइट एनर्जी का ओनली 1%. आपको दो चीज़ें बिल्कुल अलग अलग ध्यान रखनी है, एक तो 1% कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है और 10% लॉ, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. तो आप बहुत ध्यान रखिए कि सनलाइट का टोटल जितनी भी एनर्जी जूल में एनर्जी प्रेजेंट है सनलाइट की, उसका 1% ही प्लांट कंज्यूम करते हैं. ठीक है, पहली बात तो ये. देन जब प्लांट्स में वो एनर्जी आ गई है, जितनी भी एनर्जी है, सपोज 10 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल इन द प्लांट्स, तो उसका 1%, उसका 10%, उसका 10% ईच ट्रॉफिक लेवल में जाएगा. तो पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि सनलाइट का तो सिर्फ 1% प्लांट्स में आएगा और प्लांट्स में जितना भी होगा उसका 10% ही नेक्स्ट लेवल में जाएगा. तो दिस इज कि ये बात कि 10% ही नेक्स्ट लेवल में ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होता है एंड द रिमेनिंग 90% इज ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट. तो ये आपको याद रखना है एंड दिस इज नोन एज 10% लॉ, दैट ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल एंड 90% इज लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट. देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर 100 जूल ऑफ एनर्जी है तो 90% तो उसका लॉस हो जाएगा, है ना. 10 जूल एनर्जी है तो 9 जूल ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन एनवायरनमेट एंड 1 जूल एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल. ऐसे ही 1 जूल का 10% निकालेंगे तो 0.1 जूल एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल एंड 0.9 जूल एनर्जी इज लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट. तो ये आपको याद रखना, दिस इज 10% लॉ. देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन. तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? जैसे हमने देखा फूड चेन में जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं उसमें फूड और एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है. तो जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो ऐसे ही जो फूड कंटेंट्स हैं उनमें अगर कोई हार्मफुल केमिकल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जैसे हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं फील्ड में, ये सारा इकट्ठा होकर वाटर के साथ कई वाटर बॉडीज़ में भी जाता है और उन वाटर बॉडीज़ से वहाँ के रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी कंज्यूम होता है. ऐसे ही अगर कोई हर्बीवोर एनिमल है वो किसी ग्रास को या किसी फॉडर को कंज्यूम कर रहा है और उसमें अगर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स है तो वो क्या होंगे, उनकी बॉडी में भी जाएंगे. तो एज वी मूव ऑन द हायर ट्रॉफिक लेवल, ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स है ये और ज़्यादा एक्यूमुलेट होता जाता है जैसे जैसे हम हायर ट्रॉफिक लेवल पर जाते हैं. तो जैसे हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस आर ऑन द टॉप ऑफ द ट्रॉफिक लेवल, सबसे हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे है हम. तो क्या होगा, हमारे अंदर मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा किसका, हार्मफुल केमिकल्स का. तो दिस एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स प्रोग्रेसिवली increases at each trophic level and this is known as biomagnification. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, नाउ जो हमारा लास्ट पार्ट है चैप्टर का वो आता है एनवायरमेंटल इश्यूज. एनवायरमेंटल इश्यूज में ये है कि जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो दो चीज़ें हमारे चैप्टर में दी हुई हैं, एक तो ओजोन लेयर का क्या रोल है ना, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, डिप्लीशन, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर्स. तो ये सब हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं एंड विल सी द मैनेजमेंट ऑफ द गार्बेज. तो ओजोन लेयर जैसे कि आप जानते हैं इट इज़ हाई अप इन द एटमॉस्फेयर. ये कैसे बनता है, एक्चुअली जब अल्ट्रा वायलेट रेज ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती हैं, मतलब ऑक्सीजन से जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन स्ट्राइक होते हैं तो वो ऑक्सीजन को ब्रेक कर देता है और एक सिंगल ऑक्सीजन एटम बनता है इसमें, दैट इज नेसेंट ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड. तो क्या हुआ, ऑक्सीजन का एटम स्प्लिट हो गया
मतलब मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया इनटू नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर ओजोन बनाता है, ठीक है। तो ओजोन ऐसे देखा जाए तो इट इज़ अ पॉइजनस गैस, लेकिन ये हमारे एटमॉस्फेयर में एक इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रही है जो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। तो ओजोन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर का। जैसे हम सैटेलाइट पिक्चर अगर देखें तो हमें ओजोन लेयर में एक होल नज़र आएगा। अब ये होल क्यों हो गया, मेनली बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे मतलब अर्थ पे बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके एक्यूमुलेशन की वजह से ओजोन के लेयर में डिप्लीशन हो गया है, ओजोन में होल हो गया है। तो इस एज अ रिजल्ट ऑफ इट क्या होगा, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं दे विल रीच ऑन द अर्थ एंड दे विल हार्म अस, हमको नुकसान पहुंचाएंगी, जिससे कि कई सारी डिजीजेज हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है, आंखों में कैटरैक्ट हो सकता है। तो देयर आर मेनी डिजीजेज या मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। देन हाउ कैन वी कंट्रोल देम, ये भी हम देखेंगे। तो बाय स्टॉपिंग द यूज़ ऑफ, मतलब ये पूरा एक वर्ल्ड में मिलकर एक चीज़ डिसाइड हुई थी कि वी विल कंट्रोल द यूज़ ऑफ CFCs, कुछ उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ करेंगे सो दैट डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कैन बी मिनिमाइज्ड। द नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट ऑफ द गार्बेज, कि किस तरह से जितना भी हम डेली इतना सारा वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका क्या होगा, कैसे उसको हम मैनेज करें कि हमारी अर्थ पे ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं हो, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, ये सब हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक तो सेपरेशन ऑफ या सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज करें, कम से कम हमारे घरों में गार्बेज प्रोड्यूस हो, है ना। एक तो रिड्यूस करना है हमें चीज़ों के, 3 R's आपने पढ़े ही हैं प्रीवियस क्लासेस में, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, तो ये तो हम कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर हम गार्बेज को प्रॉपर प्लेस पे पहुँचाएँ, और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे कंपोस्ट बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, सो दैट जगह जगह हमारे क्लीनलीनेस रहेगी एंड आवर एनवायरनमेंट विल ऑल्सो बी क्लीन। तो ये थे हमारे चैप्टर के टॉपिक्स। नाउ वी विल डिस्कस द इंटरनल क्वेश्चंस। इसके लिए आप बुक ओपन कीजिए अपनी, ओपन ही होगी ऑलरेडी। नाउ आई विल टेल यू द पेज नंबर and you will mark the internal questions, you will write down the internal questions and answers in your book. So as you can see on the screen, question number 1, if you are using new book, new edition of book देख रहे हैं आप, तो पेज नंबर 256 आप ओपन करेंगे और इस पे you will write first internal question, what are the 2 basic components of ecosystem। तो आपका पैराग्राफ टॉपिक 15.1 है, इस पैराग्राफ की मिडिल में आ जाएंगे अगर, तो आप इसका आंसर भी मार्क कर सकते हैं। द 2 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर बायोटिक एंड एबायोटिक, ना। तो आपको पेज नंबर 256 पर सेकेंड पैराग्राफ में ये आंसर मिल जाएगा, मार्क इट डाउन। देन क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इसी पेज पे है, सेम पेज 256 से, ये थर्ड पैराग्राफ पे आपको मिल जाएगा। गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आप इस पे देख सकते हैं, लास्ट 3 लाइन्स में आपको मिल जाएगा ये आंसर। मैं आपको लाइन्स रीड करके बता देती हूँ। अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक्स, दीज आर द नेचुरल इकोसिस्टम, तो ये आपके नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हो गए। एंड द गार्डन्स एंड द क्रॉप फील्ड्स आर ह्यूमन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ ऑन पेज नंबर 257। तो आप पेज 257 पे आएंगे, थर्ड पैराग्राफ, व्हाट आर डिकम्पोजर्स, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ की थर्ड लाइन से आप आंसर मार्क कर सकते हैं। डिकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच फीड अपॉन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपको पेज नंबर 257 पर पैराग्राफ 3 में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल के लिए आप पेज नंबर 258 पर आ जाइए, सेकेंड पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉफिक लेवल, तो आपको यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन मिल जाएगी, ईच स्टेप और द लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन भी किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच एनर्जी ऑफ सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू विल गेट ऑन पेज 258 ओनली। आपके ये पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे आप देखोगे,
थर्ड पैराग्राफ के बाद बुलेटेड पॉइंट्स हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओनली 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेडिएशंस। तो ये आपको मिलेंगे पेज नंबर 261 पे। पेज नंबर 261 पे बिल्कुल फर्स्ट लाइन है, ये स्टार्ट एक्चुअली 260 से हो रही है, तो आप यहाँ से ले सकते हो, दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल इट इज नोन टू कॉज कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। सो इन दिस वे वी हैव मार्क्ड द इंटरनल क्वेश्चंस आल्सो। नाउ वी विल डिस्कस द कॉपी वर्क ऑफ दिस चैप्टर। So let us understand the questions of the copy work, that is question number 1, what is food chain? As we have already discussed, अभी हमने पूरा revise भी किया, in short हम समझ लेते हैं, the series of organisms taking part at various trophic biotic levels forms a food chain। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से step by step organisms एक दूसरे के को food provide करते हैं, this is all फूड चेन। और फूड चेन में जो हर स्टेप होता है वो ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। ऑटोट्रॉफ्स आर ऑन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, जो कि हमारे लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। देन कम्स द प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन टर्शरी कंज्यूमर्स, जो कि फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ओजोन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर What are the factors responsible for the destruction of ozone layer? तो अभी हमने जस्ट अभी डिस्कस किया ही था कि ओजोन क्या है, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, जो कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल प्लस नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बनाते हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ ओजोन जो है वो क्या है, धीरे धीरे कम होने लगा है, डिप्लीशन हो रहा है, जो कि 1980 में ऑब्जर्व किया गया था। एंड ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू द मोर यूज ऑफ CFCs। जो CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के ज़्यादा यूज़ करने से ये हमारे ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है। कहाँ पे यूज़ होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स और एयर कंडीशनर्स में इनका यूज़ बहुत हो रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉफिक लेवल। अगर हम किसी एक ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को हटा दें, रिमूव कर दें, सपोज बीच में से ही कोई एक ट्रॉफिक लेवल हम रिमूव कर दें, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन ट्रॉफिक लेवल, तो क्या होगा, देखो, एक तो पॉपुलेशन ऑफ प्रीवियस ट्रॉफिक की जो लेवल की है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, उसको कौन कंज्यूम करेगा, द ऑर्गेनिजम्स इन द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल विल नॉट बी एबल टू गेट द फूड। उसके बाद वाला जो होगा उसको फूड ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे पहले वाला रिमूव हो गया। एंड इट विल कॉज एन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा, एक दूसरे मतलब फूड नहीं मिलेगा, तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड एलिमिनेशन ऑफ वन ट्रॉफिक लेवल वुड स्टॉप द फ्लो ऑफ एनर्जी। जो एक पूरी फूड चेन है जिसके थ्रू एनर्जी फ्लो हो रहा था, वो सारा बिगड़ जाएगा। नाउ विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन अ ट्रॉफिक लेवल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। तो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल को रिमूव करने से अलग अलग फर्क पड़ेगा, अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। यस, Can the organisms of any trophic level will be removed without causing any damage to the environment? तो ऐसा नहीं होता है, एक भी ट्रॉफिक लेवल को रिमूव करने से फर्क पड़ेगा, और लेकिन डिफरेंट फर्क पड़ेंगे, डिफरेंट इफेक्ट विल बी देयर। इफ वी रिमूव ऑल द प्रोड्यूसर्स, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स विल बी इफेक्टेड इंस्टेंटली, उनको तुरंत फर्क पड़ेगा, लेकिन जो उसके बाद वाले हैं सेकेंडरी कंज्यूमर को थोड़ा टाइम बाद इफेक्ट पड़ेगा। तो दिस इज डिफरेंट इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट। तो हम अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, तो उससे हमारे एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो देखो, जैसे हम पॉलीथिन्स है, प्लास्टिक्स हैं, यूज़ करके फेंक देते हैं, तो व्हेन वी थ्रो देम दे कहीं इधर उधर, कहीं वाटर बॉडीज़ में, कहीं ड्रेन्स में, वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, तो इट इज़ कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन, इट इज़ कॉजिंग लैंड पॉल्यूशन, है ना। एंड सम ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल जो जैसे DDT है, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, वो एक्यूमुलेट हो रहा है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ है। एंड दे ऑल्सो
कॉज द स्टॉपेज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ड्रेन्स, तो वो ब्लॉक कर देते हैं ड्रेन्स को जिससे कि वाटर फ्लो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय, मतलब व्हाट विल हैपन इफ वी जनरेट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। अगर हम सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही प्रोड्यूस करें तो उससे फ़र्क पड़ेगा क्या? ऑफ कोर्स दिस विल ऑल्सो इफेक्ट। अगर सारा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल ही होगा तो वो जो बैक्टीरिया एंड फंगी हैं दे विल नॉट बी एबल टू डिकम्पोज इट इन प्रॉपर टाइम, और इसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो भी क्या होगा? पॉल्यूशन होगा, लैंड सॉइल पॉल्यूशन होगा, और देयर विल बी स्मेल इन ऑल द एनवायरनमेंट। So if we generate biodegradable waste, it will have an impact on environment because it will not be broken down into simple substances. So ये भी pollutant का काम करेगा फिर। Now the last question is why is damage to the ozone layer a cause for concern? अभी हमने डिस्कस किया था कि ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है या डैमेज है वो हमारे लिए चिंता की बात क्यों है। तो एंड व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। तो सबसे पहले देखो इनके पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। द डैमेज टू द ओजोन लेयर कॉजेज मोर अल्ट्रा वायलेट रेज टू रीच अस। हम तक क्या होगा? ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज पहुँचेंगी जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। कैसे? एनिमल्स के लिए भी और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी हार्मफुल है। यूवी रेडिएशन में कॉज स्किन डिजीज, स्पेशली स्किन कैंसर, तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। प्लांट लाइफ विल बी डिस्टर्ब ड्यू टू रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ कम हो जाएगी, उनमें पिगमेंट्स की प्रॉब्लम आ जाएगी, पिगमेंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे पिगमेंट्स। अल्ट्रा वायलेट रेज में किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली डिकम्पोजर्स, और जो दूसरे यूजफुल माइक्रोब्स हैं वो भी डैमेज हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नाउ व्हाट कैन वी डू? हम क्या कर सकते हैं टू लिमिट द डैमेज ऑफ ओजोन लेयर? वी शुड लिमिट द यूज ऑफ सुपरसोनिक प्लेन्स, उनको कम करना होगा। कंट्रोल ओवर लार्ज स्केल न्यूक्लियर वेपन्स, जो न्यूक्लियर वेपन्स हम यूज़ कर रहे हैं और जो एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं उनको रिड्यूस करना होगा। एंड लिमिटेड यूज़ ऑफ स्प्रे प्रोपेलेंट सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो CFCs का यूज़ बिल्कुल कम करना है जिसकी वजह से ओजोन लेयर में होल हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, we have revised the chapter, we have marked the internal questions also, and we have gone through the copy work also. I hope you would have understood all the things. So thank you, take care, goodbye.